This is Sunil Bhatnagar again present before you with a video. Friends, in this video we will discuss about how to maximize your machine efficiency. Now what is machine efficiency? Machine efficiency is the actual production of that particular machine per shift divided by maximized production of that particular machine per shift. Now why it is required? Because as you are all already aware that after a lockdown period, our mill they have partially started, and in this particular era, we must give the maximized production if we want to make our dreams comes true. The reason is that in order to get 100% efficiency, it seems to be impractical because your machine stoppages are there due to doffing, due to idle spindle, then due to oiling and cleaning. So these are the reasons due to which the machine stops working. So, but the basic reason of an engineer is to reduce the unavoidable losses, unavoidable stoppages. Now, what are the unavoidable stoppages? That is, the two machines are stopped for doffing. That means the clash of the doff is there. Second is the bobbins are not there. Third is one of the doffer is missing. The breakdowns are there. Then winding machine is not supplying bobbin to the machines, or the breakages are so high that the kirchi is there on the bobbin. So for these reasons, to identify the reason, the snap round is there. Why the snap reading is there? First is it is a simple technique. Second is it gives a particular idea to you that what is happening in the department or what will be the efficiency. So in this particular video, we will discuss that what should be the number of rounds so that you can confidently say that your efficiency will be 85% plus minus this much error. Now here I will just give you an example. For a I took 25 rounds, then number of machine is 120 and the stoppages during 25 rounds I found it to be 300. तो मैंने 25 राउंड्स लिए 120 मेरे रिंग फ्रेम थे. Now what will be the efficiency? Efficiency loss is equal to stop 300 divided by 25 into 120. It will be 10%. तो फ्रेंड्स मुझे मोटा मोटा ये पता लग गया कि मेरे जो लॉसेस हैं वो ये हैं. फिर उसके बाद मुझे ये देखना है कि ये जो 300 स्टॉप थे इसमें डॉफिंग के कारण कितने बंद थे, बॉबिन्स के कारण कितने बंद थे, काउंट चेन में कितने थे, बॉबिन शॉर्टेज के कारण कितने थे, रोविंग नॉट अवेलेबल दैट इज स्टफ बैक शॉर्टेज के कारण कितने थे. तो वहां पे हम अटैक कर सकते हैं. जो अवॉइडेबल रीजन है उन्हें हम कर सकते हैं. दोस्तों बहुत मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि बहुत चांसेस हैं इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट के, क्योंकि स्किल इज वन ऑफ द एरिया विच लैक्स इन आवर केस. नॉर्मली पुरानी मिलों में 5 मिनट लगता था डॉफ निकालने में.
आज का जो कारीगर है वो 3 मिनट्स में लगा देता है। अगर मैं स्केट्स में दे दूं या अलग दे दूं तो ये फर्दर इट कैन बी रिड्यूस टू 2 मिनट्स। और अगर मैं रॉबर्ट्स यूज कर लूं या मैं ऑटोमेटिक डॉफिंग कर दूं तो 1 मिनट में लगता है। लॉस कितना हो गया? पहले जो है 0.8 लॉस पर डॉफ, एफिशिएंसी लॉस हम लेते थे 0.8। पर जब अगर मैं ये जो है मतलब 1 मिनट में डॉप निकालूंगा, नेचुरल लॉस विल कम, माई एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। अब व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एफिशिएंसी? जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है? योर प्रोडक्ट विल इंक्रीज। प्रोडक्ट में क्या होगा? आपकी जो लेबर कॉस्ट है एक तो वो कम हो जाएगी, लेबर कॉस्ट विल रिड्यूस, योर yarn रिकवरी विल इम्प्रूव, सेल्स आपकी क्या हो जाएगी? इट विल इम्प्रूव। तो ये जो पीरियड हमारा जो चल रहा है, इस पीरियड में अगर हम 1% भी कंट्रीब्यूशन अपना दे देते हैं डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाने में, तो फ्रेंड्स मिरेकल्स विल हैपन। अब यहाँ पे हमें सवाल आता है कि मैं कितने नंबर ऑफ राउंड्स लूं। अब जैसे मेरा यहाँ पे मैं केस लेके चल रहा हूँ, मेरे नंबर ऑफ रिंग फ्रेम जो डिपार्टमेंट के अंदर है वो 64 हैं, रिंग फ्रेम्स हैं। एरर जो है वो मैं 2% मान के चल रहा हूँ। एफिशिएंसी जो है वो 85% है। और कॉन्फिडेंस लिमिट के वो 95% लेके चल रहा हूँ। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें 95% कॉन्फिडेंस लिमिट मानी जाती है स्टेटिस्टिकल में, और 2% से 5% हम एरर मान के चलते हैं, हो सकती है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज द नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू के ई इंटू 100 माइनस ई डिवाइडेड बाय एरर स्क्वायर। अगर मैं ये एरर मान के चल रहा हूँ और ये एफिशिएंसी है तो इसको मैं x मान के चलता हूँ एरर को, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। एक्स स्क्वायर इंटू एन। अब क्योंकि मैंने ये 95 मान के चला है, k की वैल्यू 4 होती है व्हेन 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, और 9 होती है जब 99% कॉन्फिडेंस लिमिट है। तो इस केस में मैं करता क्या हूं यहाँ पे, आई विल पुट द फॉर्मूला 4 into 85 into 100 minus 85 divided by 4 into 64। तो अगर मैं ये 85 into 15 64 it will be approximately 20 rounds। तो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स जो हैं दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि जी 20 की बजाय मैं 10 राउंड लूंगा तो, और एरर 2% है, तो वहां पे आपकी एफिशिएंसी, हमें एफिशिएंसी वही चाहिए, तो व्हाट विल बी द एरर? क्योंकि जितना आप नंबर ऑफ राउंड्स कम करते जाएंगे उतनी आपकी जो कॉन्फिडेंस लिमिट है वो 95 की बजाय वो जो है 80 हो जाएगी। और जितना मैं नंबर ऑफ रीडिंग्स बताऊंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा कि भाई मैंने इतनी रीडिंग्स ली है, रिजल्ट मेरा जो है इतना आएगा। अब ये जो फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे बताया, ये लूम्स में भी यूज हो सकता है, ये कार्डिंग में भी हो सकता है, ये किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर मशीनों पे हो सकता है जहाँ पे हम अपनी मशीन की एफिशिएंसी जो है निकालना चाह रहे हैं और साथ ही साथ एनालाइज करना चाहते हैं कि जिससे कि हम रिलायबल ढंग से कह सकें
कि 20 राउंड्स लेने पड़ेंगे अगर हमें एफिशिएंसी 85% चाहिए एट द एरर ऑफ प्लस माइनस 2%. So friends, this is all for today and wish you all the best. Thank you.